Has the Aam Aadmi Party government in the capital lost its moral authority to stay in power? Should Arvind Kejriwal step down? Joining us now on India Today, live and exclusive, Vijay Goyal, senior Delhi BJP leader. Also with us is Haroon Yusuf, senior leader of the BJP. Vijay Goyal was in fact the first leader who said that once the MCD election results come out and if the AAP is routed, Aam Aadmi Party chief Arvind Kejriwal should step down. That's the claim that Vijay Goyal had made. That's what he pressed for. Do you believe, Vijay Goyal ji, that Arvind Kejriwal should step down? Should he resign because of this big defeat in Delhi? Kejriwal should step down. That's the claim that Vijay Goyal had made. That's what he pressed for. Do you believe, Vijay Goyal ji, that Arvind Kejriwal should step down? Should he resign because of this big defeat in Delhi? ये अरविंद केजरीवाल जी को तय करना है, दिल्ली के मुख्यमंत्री को, कि जनादेश उनके खिलाफ आ गया है, तो जाहिर तौर पर ये निर्णय उनका है। पर मेरा ये कहना है कि अब आगे के जो बाकी के साल हैं वो उनको कंस्ट्रक्टिव अप्रोच के साथ लगाने चाहिए, कन्फ्रंटेशन की पॉलिटिक्स छोड़कर, और केंद्र सरकार और एमसीडी के साथ मिलकर काम करने चाहिए। ये जो धारणा बनाई जाती है कि एमसीडी में बीजेपी है, वो गलत है। तीनों कमिश्नर्स की अपॉइंटमेंट मुख्यमंत्री करते हैं, तो ऐसे के अंदर मैं समझता हूं कि अरविंद केजरीवाल को आगे की कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स करते हुए, सबको साथ लेते हुए कन्फ्रंटेशन नहीं करनी चाहिए। इससे दिल्ली का पहले ही बहुत नुकसान हुआ है और नुकसान होगा। आवाज नहीं आ रही है भैया? Fine, but many BJP leaders are saying that Arvind Kejriwal should step down. The AAP meanwhile believes there may be a concerted plan to take down their government. That's a concern a lot of AAP people have. I want to ask Haroon Yusuf, do you believe that this victory has taken away some of the moral legitimacy? Or do you think victory and defeat is a part of life and really Kejriwal needn't bother from here? Mr. Yusuf. See, in democracy it is the MLAs which decides what will happen. But unfortunately, since the BJP has come to power, this practice is fading away slowly. We have seen in Manipur, we have seen in Arunachal, we have seen in Goa. So we cannot say anything what they will do. But morally, Arvind Kejriwal must step down and must go for the fresh poll. Must be fresh elections, which needn't necessarily be good news for the Congress, because you were third in 2015, you are third now. You know, the BJP asking for fresh polls I can understand, because they got 180 plus out of 270. You asking for fresh polls doesn't necessarily make sense, because that won't necessarily be good news for you. No, you see, what I am saying is he should take moral responsibility of the defeat. That the way he has fooled people, and then his party will decide who will be there or who will not be there. This is what I am saying. Conspiracy theorists in the capital who believe that now that you won so handsomely in the MCD elections, the BJP will try to do another Arunachal, another Uttarakhand. How do you respond to these people who think that because you won now, the BJP government may try and interfere in what's being done by the Kejriwal government, possibly even try and take them down? That's Sheila Dikshit speaking to India Today. Do you believe, Vijay Goyal, that you know, what do you make of all these conspiracy theorists who seem to suggest that now the BJP will do to the Aam Aadmi Party government what happened in Arunachal and Uttarakhand, that there would be a round of political instability after these MCD results? राहुल, उसके आधार होने चाहिए ना। आप जब चाहें आरोप लगा देंगे अलका लांबा कि भाई मेरे पास फोन आया, किसका फोन आया वो बता नहीं सकेंगी। उसके बाद आप आरोप लगा देंगे कि भाई ईवीएम में हम वोट तो करने जाएंगे, पर अगर हम जीत गए तो ईवीएम ठीक है, और खराब अगर हम हार गए तो ईवीएम खराब है। इसी तरीके से कोई अरुणाचल और कोई ये होगा, उसका कोई बेस तो होगा। और दूसरी बात ये, क्या उनको ये लगता है कि उनकी पार्टियों के अंदर छटपटाहट हो रही है और लोग भारतीय जनता पार्टी में जाने को तैयार हैं, जो वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं? क्या उनको लगता है उनके लोग बिकाऊ हैं, जो कि
इतनी अच्छी पार्टी को छोड़कर, जिसके बारे में वो कहते थे कि ये भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए आए हैं, वो खुद भ्रष्टाचार के अंदर आधे से ज्यादा मंत्री उनको सैक करने पड़े और आधे से ज्यादा एमएलए पे केस चल रहे हैं। इसलिए ये एक नई चीज मैंने देखी है कि आप मीडिया में आइए, आरोप लगाइए, मीडिया उनसे ये भी नहीं पूछता कि आपके आधार क्या है। हमें क्या जरूरत पड़ी है? जो सरकार जनता ने खुद गिरा दी है, जनता ने जो सरकार गिरा दी है उसको हमें गिराने की क्या जरूरत है? क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि अभी दिल्ली सरकार के खिलाफ ये मैंडेट आया है? एक्चुअल में तो ये मैंडेट आप देखेंगे तो 3 चीजों पे आया है। पहला आया है कि आम आदमी पार्टी ने 2.5 साल के अंदर जो एरोगेंस दिखाई है, जो अब्यूजिंग लैंग्वेज इस्तेमाल करी है और जिस तरीके से कॉन्फ्रंटेशन की पॉलिटिक्स की है, पहला मौका पाते ही जनता ने अपना धनादेश सुना दिया कि हमें ये चीजें पसंद नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी जिस तरीके से आगे डेवलपमेंट के काम को लेकर चल रहे हैं, जिस तरीके से योगी जी मुख्यमंत्री बने उत्तर प्रदेश के अंदर और फिर योगी जी लगातार काम कर रहे हैं, तो लोगों को लगता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी तो प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में उनकी लीडरशिप के अंदर इनकी जहां भी कोई सरकार होगी या कारपोरेशन होगी वो बेस्ट से बेस्ट काम करके दिखाएगी। इसलिए हमने नए लोगों को चुना है ताकि एक नई टीम आए, नए उत्साह के साथ काम करे। इसमें यह कहां बात आ जाती है कि हमें दिल्ली सरकार को तोड़ने की जरूरत है। यही दिल्ली सरकार चलती रही और इसी तरीके से चलती रही तो अगली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, पर हकीकत यह है कि अब इस वक्त आपकी टीम पूरी तरीके से प्राइम मिनिस्टर मोदी पे डिपेंडेंट है। आपको अपनी पूरी एमसीडी की टीम को फायर करना पड़ा, उनके काम से लोग नाखुश थे। आपको इस बात का एहसास है कि बीजेपी इस वक्त, आज की बीजेपी पूरी तरीके से प्राइम मिनिस्टर मोदी के करिश्मे पे डिपेंडेंट है? प्राइम मिनिस्टर मोदी का करिश्मा इसीलिए तो है कि इतनी बड़ी पार्टी उनके साथ है, इतने सारे कार्यकर्ता उनके साथ हैं, उनकी नीतियों को हम लोग फॉलो करते हैं और वो जो विकास के कार्यक्रम देते हैं उनको हम नीचे तक ले जाते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी है कि जब अटल बिहारी वाजपेयी थे तो वाजपेयी जी का नाम चलता था, इसलिए चलता था कि वो लीडरशिप है। इंदिरा गांधी की लीडरशिप को कांग्रेस ने कितने समय तक रखा, नेहरू की लीडरशिप को रखा। आज मोदी जी की लीडरशिप है तो जाहिर तौर पर उसको पार्टी को फायदा होगा, क्योंकि लीडरशिप का मतलब होता है विजन, लीडरशिप का मतलब होता है विल पावर, लीडरशिप का मतलब होता है डेवलपमेंट। मोदी के नाम का मतलब है डेवलपमेंट, विल पावर और विजन। Okay, and Haroon Yusuf, before we end, what does the future hold for the Congress? Is there a plan at all, strategy to try and at least beat the AAP, come second next time? Or do you think that the Congress will continue to languish? There were several reports about other Congress leaders also being in touch with the BJP and that they may jump as well. You see, I told you earlier also, Rahul ji, when I was on the show, some people always in the election go, some people come. But there are people who are attached to the ideology of the Congress party, who are there in the party because of the ideology and the vichardhara. They will never do that. और दूसरी बात मैं आपको एक कहना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी उस तमाम चीज़ों का आकलन करेगी और कि दिल्ली में क्या कमियां रही, कैसे उनको दूर किया जा सकता है, और कांग्रेस जो है लोगों को किस तरीके से जो सच्चाई है वो बताई जाए। आज बेरोजगारी की इंतहा है, आज कीमतें आसमान पे हैं, लेकिन कोई इन तमाम चीजों पे बात करने को तैयार नहीं है। गैस का सिलेंडर 400 रुपए से 700 हो गया, चने की दाल 50 रुपए से 150 हो गई। 1 करोड़ रोजगार का वादा किया था, कुल 4 लाख रोजगार दिए हैं। ये जो इश्यूज हैं, अभी जब ये मैस्मराइजेशन खत्म होगा तो रियल इश्यूज सामने होंगे। और हिंदुस्तान के लोगों ने और दिल्ली के लोगों ने हमेशा बड़ी समझदारी का सबूत दिया है, और वो इन सब चीजों को जब देखेंगे, सच्चाई सामने आएगी, तब उनको पता चलेगा असली विकास कांग्रेस ने किया है या इस दौर में हुआ। Well, as of now, at least the voters of the capital and pretty much elsewhere too, not believing what you're saying, that of course is something that could change in the years to come. As of today, EVM seems to stand for either everyone's voting Modi or a big election winning machine for the BJP. Haroon Yusuf, Vijay Goel, thank you very much for joining us. I want to go across to Ashutosh Mishra. He tracks the Aam Aadmi Party. What's the kind of manthan going on inside the AAP? How are they taking this defeat? And what are they thinking about how they can possibly come back from here, Ashutosh?
Rahul, at this moment, Arvind Kejriwal meeting all the MLAs of different constituencies and taking ward by ward record and number of voting, number of percentage, as what really went wrong at ground and why Aam Aadmi Party decimated in such an embarrassing manner. Joining me, Aam Aadmi Party MLA Sanjeev Jha from Buradi. Rahul, Sanjeev, what actually went wrong? Instead of blaming EVN, isn't it a time for Aam Aadmi Party to introspect? नहीं, देखिए, मैं वही कह रहा हूँ कि जब से ये रिजल्ट आया है, मैं हमारे कई कॉलोनी से मुझे भी फोन आ रहे हैं, लोग अपने आप बातचीत कर रहे हैं कि हमने तो वोट ही नहीं किया था, ये वोट कैसे आ गया। मेरे यहाँ एक इंद्रप्रस्थ कॉलोनी है, इंद्रप्रस्थ कॉलोनी के लोग 25 लोगों के फोन मेरे पास आ गए कि हमने तो वहाँ एक तरफा वोट ऐसा लग रहा था कि आम आदमी पार्टी कोई किसी घुसने नहीं दे रहा था और वहाँ पे बीजेपी जीत रही है। हमारे यहाँ एक गढ़ी कॉलोनी है जिसमें 500 मुस्लिम वोटर्स हैं, उसमें 350 वोट उनको मिल गया। Can be seen as an anger against Arvind Kejriwal, who right after winning in the national capital, he went to Punjab, he went to Goa, he went to contest Gujarat. Don't you think that this could be, an anger against Arvind Kejriwal, that you were voted in Delhi to govern, to rule, but instead of governing, you kept running here and there into every state contesting elections? देखिए, हमारे यहाँ अनऑथराइज्ड कॉलोनी में लोग रहते हैं और गरीब लोग रहते हैं। एक एक आदमी यह कह रहा था कि हमें बिजली और पानी सस्ता मिल रहा है। मैं ये बताऊं कि हमने 2 साल में क्या किया। हमने कहा कि भाई बिजली का अधिकार सबको सस्ती बिजली दी, हमने मुफ्त पानी दिया, मुफ्त शिक्षा और अच्छी शिक्षा की व्यवस्था करी, अच्छे स्वास्थ्य की व्यवस्था करी, तो डेवलपमेंट का काम किया। तो एक एक आदमी आज मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में कम 90% कॉलोनियां हैं जहां पक्की हो गई है। तो इस सब काम होने के बावजूद और लोग एक तरफा हो रहे, सब कहते हैं नहीं 2 साल से हमारे पार्षद ने एक काम नहीं किया और जब से केवल ब्लेमिंग कर रहा है। तो नहीं, जिस पार्टी की सरकार होनी चाहिए पार्षद उसी का होना चाहिए। दूसरी बात कि हमें केजरीवाल सरकार ने बिजली मुफ्त आदि दिया, पानी मुफ्त दिया, ये बातें सिंक कर रही थी लोगों में। तभी तो मैंने कहा कि कहीं ये कोई नहीं पूछ रहा था, ये मीडिया बातें चल रही हैं कि अरविंद केजरीवाल यहाँ चले गए, वहां चले गए। जनता को काम चाहिए, उसको फायदे चाहिए, वो हमारी सरकार से मिल रहे। जनता को काम चाहिए और फायदे आपकी सरकार से मिल रहे थे, तो इस तरह से डेसिमेट कैसे हो गए आप? 70 में से 67 लाने वाली पार्टी आज अगर आंकड़े निकाले जाए तो आज 10 से 12 विधानसभा सीटों का नतीजा है ये कि आप पूरे 70 में से 10 से 12 पे सिमट के रह गए हैं। तभी तो मैं कह रहा हूं कि ये जनता का जनादेश है ही नहीं है, ये ईवीएम की कृपा है, ये जनादेश नहीं है। जनता का। अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की, क्या कहा उन्होंने, किस तरह की बातचीत हुई या किस मुद्दों पर चर्चा हुई? नहीं, बेसिकली हम लोग आके यही बात कर रहे थे। बेसिकली जो हमारे पास फीडबैक हमारे क्षेत्र से आ रहा है वही फीडबैक हमने इनको दिया कि वास्तव में ये जो दिख रहा है सच्चाई ये नहीं है। या हमारे यहाँ, मैं तो कहता हूँ जितनी भी सर्वेज हुए, लोग पत्रकार भी कह रहे थे नहीं यहाँ तो बहुत जबरदस्त माहौल है जी, 6 में 5 सीट तो कम से कम जीत रहे हैं आप। तो ये जो रिजल्ट है सरप्राइजिंग रिजल्ट है और इस रिजल्ट को लेकर हमने ही चर्चा करी कि कई जगह से जो फीडबैक आ रहे थे, इंट्रोस्पेक्शन किया जाएगा या नहीं, क्या आप सरकार की प्रायोरिटी दिल्ली पर ध्यान देने की होगी या नहीं? नहीं, देखिए, बिल्कुल इंट्रोस्पेक्शन दोनों तरह से किया जाएगा। एक जो सीरियस कंसर्न हमारा है कि अगर वास्तव में ईवीएम टेम्पर्ड होके अगर जनादेश लिया जाएगा तो डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी जी, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का मतलब नहीं रह जाएगा। तो उसको मैं ये कहता हूं, ये आम आदमी पार्टी की नहीं बाकी सारी पार्टियों की जिम्मेदारी है कि जिस तरह से यूपी के बाद एक पे एक मैंडेट आते जा रहे हैं और ये डेसिमेटेड जो आप कह रहे हैं, ये जो हो रहा है, सारी पार्टियों इकट्ठा होना चाहिए और मुझे लगता है इसके खिलाफ एक मुहिम चलानी चाहिए। पहली बात। दूसरी बात कि बिल्कुल इंट्रोस्पेक्शन होना चाहिए कि हमने जो काम किया है ये काम सिंह करा पाए हैं कि नहीं करा पाए हैं, क्या जनता वास्तव में हमसे नाराज है। मैं अपने क्षेत्र में गलियों में गया, घर घर गया, मुझे कहीं इस तरह की नाराजगी दिखी नहीं। तो चर्चा करेंगे सारी बातों पर। थैंक यू संजीव। सो राहुल, यू हर्ड दिस आप MLA Sanjeev Jha, and clearly party is in mood of introspection, but the same time they are planning a bigger escalation against the EVM malfunctioning, alleging that this was perhaps EVM tampering that led to this embarrassing defeat of Aam Aadmi Party in the MCD polls. Rahul? Thank you very much, Ashutosh. This is the first reaction we've got after this meeting of AAP MLAs got over. They're just blaming EVMs. It's ridiculous, completely this charge, because people go out and vote. More than 53% of the voters went out to vote. They know that the vote was cast in front of their eyes for the party that they voted for, whichever that party may have been. If anecdotally people had believed this to be true, there would have been more credence given to what the Aam Aadmi Party was saying. I'm afraid that is simply not the way the voters of Delhi or elsewhere see it. They know from their own experiences that EVMs are not